Happy Teachers Day to all of the teachers. It's a great day for all of us, and it's for the first time and even unfortunate that we are celebrating Teachers Day with our students. Today, I would like to discuss 10 important qualities of the teacher, which are very practical and pragmatic in nature. So, I will discuss something very practical. Out of these 10 qualities, the first were the parameters. And the first and the foremost is the teacher has to be child protective in nature. What does child protection means? Suppose some of the teachers are passing through the corridors, or maybe in the colony, and some of the students or some of the children, they are fighting with each other. So a teacher will stop and will counsel them and will talk to them what's happening. It's the quality of the teacher, because by heart he is very child protective in nature. And the second parameter is caring nature for the child. Example is, suppose the teacher asks something and the student is not able to answer the question. So normally what happens, the teacher is upset or irritated or angry, but the real teacher would be very sympathetic. अगर बच्चे को कुछ नहीं आता है तो उसके न आने के पीछे बहुत सारे कारण होंगे. इट्स नॉट ओनली द चाइल्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो जब भी बच्चे को कुछ नहीं आता तो द टीचर हैज़ टू बी सिंपेथेटिक. बच्चे के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति होनी चाहिए कि इसको ये नहीं आता है तो मैं कैसे इसको टीच कर सकती हूँ. एंड द थर्ड पैरामीटर इज द टीचर हैज़ टू हैव सब्जेक्ट नॉलेज. एक टीचर का जो नॉलेज है सब्जेक्ट का, वो होना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली नॉलेज इज़ टू बी ट्रांजेक्टेड. जो टीचर को जो ज्ञान है वो बच्चे को देना है. तो अगर टीचर के पास ज्ञान ही नहीं होगा तो उसकी डिलीवरी क्या होगी. सो सब्जेक्ट नॉलेज इज द मोस्ट रिक्वायर्ड. एंड द फोर्थ पैरामीटर इज द कैपेसिटी टू रिमेन स्टैंडिंग अप. एक टीचर नीड टू हैव सो मच एनर्जी. जब भी हम पढ़ाने के लिए चलते हैं, क्लास में पढ़ाना होता है, तो वी कैन नॉट बी सिटिंग. हमारी जो एनर्जी लेवल, इट मस्ट बी सो हाई, इट मस्ट बी सो एक्टिव, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये एक्चुअली जो मेरे को जो नॉलेज है उसको ट्रांसफर करने में, उसको ट्रांजैक्ट करने में, इट इज़ द इनिशियल पॉइंट. द टीचर नीड्स टू बी एनर्जेटिक फॉर दैट. So these are the 4 parameters. Next I will talk of 3 beliefs, 3 very core beliefs. एक अच्छे टीचर को इन 3 में विश्वास होना ही चाहिए. The number 1 is a child is the most important part of school. और अभी ये कोरोना के कारण it is nearly proved. If there are no students, there are no schools. Maybe there may be a big infrastructure, there can be many of the teachers, but if the students are not there, the schools will not exist. It means बच्चों के बगैर स्कूलों का अस्तित्व नहीं हो सकता. एक बच्चा ही स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है. द सेकेंड बिलीफ इज ए चाइल्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम. बच्चा हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, बच्चा स्कूल पे निर्भर नहीं है, बच्चा टीचर्स पे निर्भर नहीं है. स्कूल और टीचर्स बच्चे पे निर्भर हैं. दिस इज फ्रॉम 2 perspectives. वन इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि मेरी टीचिंग के कोई मायने नहीं है अगर बच्चा लर्निंग नहीं कर पाता. तो इसका मतलब क्या हुआ, माई टीचिंग इज डिपेंडेंट ऑन चाइल्ड लर्निंग. तो ए टीचर इज डिपेंडेंट ऑन द चाइल्ड. एंड सेकेंड, वट एवर यू आर सीइंग, आजकल जो आप देख रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, चिल्ड्रन आर नॉट देयर, देर विल बी नो फीस, and it will be very difficult to survive for the teachers and even for the schools. So a child is not dependent on school or teachers. It is the school and the teachers who are dependent on child. And the third part is a child is not an interruption of our work, is the purpose of it. एक बच्चा किसी भी काम में बाधा नहीं है. Whatever activities go in the school is the purpose of it. वो की ही बच्चे के लिए जाती हैं. These 3 basic core beliefs, they constitute child-centric education. So these become the quality of the teachers. And last 3 I'm talking about is 3 liabilities, or you can say the responsibilities that teacher need to have. The first one is a teacher need to be social activist.
यदि एक टीचर सोसाइटी में, एक समाज के लिए जागरूक नहीं है, तो ही कैन नॉट बी ग्रेट टीचर. Ultimately, the education is a social venture. Education is to change society. So a teacher has to be very active in social activities. Second is, a teacher is responsible to keep the dignity of the profession. चाहे टीचर्स को सैलरी थोड़ा सा कम मिलती हो, लेकिन जो उनकी थॉट प्रोसेस है, व्हाट दे आर डूइंग, एक अध्यापक पूरे समाज का निर्माण करता है. ये जो भावना है, ये जो स्पिरिट है, इट शुड बी इनसाइड विद इन द टीचर्स. दे शुड नॉट फील लो, दे शुड फील द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन. एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वन, very important, a teacher will have to take responsibility for learning outcome. Teaching is an input. Teaching is not just complete responsibility. हम टीचर जब पढ़ाते हैं, उस पढ़ाने के मायने तब ये हैं जब बच्चा सीखता है. तो टीचिंग इज टू इंड्यूस लर्निंग. इफ देर इज नो लर्निंग, देन देर वॉज नो टीचिंग. सो दीज आर ऑल बेसिक 10 ट्रेट्स ऑफ टीचर्स, और इन सब पे आप यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ. एंड अगेन हैप्पी टीचर्स डे. और आज के दिन हम एक बार फिर संकल्प लेते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हम सभी टीचर्स पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ हम क्वालिटी एजुकेशन से बच्चों को वंचित नहीं रहने देंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.